अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं ज़फ़र खान ज़ेड नाउ टीवी में आपका इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज वुमेंस नेशनल डे है। आज यहाँ पर हैदराबाद में भास्करा ऑडिटोरियम में यहाँ पर आज वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर कई देश के लोगों को, लड़कियों को बुलाकर सबको फेलिसिटेशन किया गया है, सबको सम्मान दिया गया है। तो हमारे साथ चीफ गेस्ट यहाँ पर मौजूद है, जो कि हाई कोर्ट के आप जज हैं। उनसे हम जानते हैं कि आज इस वुमेंस डे के मौके पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे मैडम? थैंक यू। First of all, I would like to congratulate the Telangana Citizens Council for organizing a very good program. They have given away awards today for women who are excelling in their own fields. It's very happy to note that there are so many awardees. On this occasion, I would like to just remind the awardees and all the women out here that occupying a position itself is not the end of the emancipation of women, but wherever women are, it's important that women realize the necessities of women and to give a correct definition about women. So it's very important for them to do that. Then only it will stand as a real achievement, not by just occupying a higher position. This is what I wanted to say. Thank you. चलिए, जैसा कि आपने बताया कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है और यहाँ पर भास्करा ऑडिटोरियम बिरला मंदिर हैदराबाद में इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस वक्त मेरे साथ वो लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद है जिन्हें आज यहाँ फेलिसिटेशन किया गया है, इन्हें सम्मान दिया गया है, जो कि हिंदुस्तान के दुनिया के कुछ अपने अपने मुल्क से यहाँ पर आए हैं, उन्हें इकट्ठा किया गया है। हम उनसे जानेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है और क्या मैसेज वो देना चाहेंगे इस वक्त। योर गुड नेम प्लीज? Yasmin. यू फ्रॉम वेयर? I am from Tajikistan. So what you want to take today? Today's National Women's Day. How you feel and what you want to give the message for all the world? Actually, I am very happy that we came here and we celebrated this holiday celebrated this together, for all the women in the world, because this day shows that women and men are equal and they will always be equal, and women are not women are strong. Sure. And they will always be strong. Sure. So I'm so happy. Thank you. Thank you, madam. So your good name? I am from Uzbekistan. Your good name? My name is Amal. I am from Uzbekistan. So I am so happy to come here and celebrate with you all the Women's Day. Okay. So what you I want can to give any message today from your side? I don't know, but I am very, very, very happy. I can say that. I saw that. I Yeah. am very happy. Thank you. Thank you, sir. जी हाँ, बिल्कुल. Excuse me, sir. Sir, please come. What is your good name, ma'am? My name is Bakhar from Turkmenistan. I'm so happy for I joined this ceremony. I congratulate all of that Happy Women's Day. Thank you so much. So you want to give any message today from your side to all world? Yeah, I have very big happiness and congratulations. Thank you, ma'am. Thank you. So what is your good name, ma'am? Yani Mashta Miskin, You from where? Ethiopia. Ethiopia. Yes. So what do you think and what do you want to give the message today? Happy Women's Day, जी. and thank you so much. I thank India to make me part of this celebration, regardless of anything. I got a chance to be. So you're very excited now. Yes. Thank you so much. So what's your good name? Yeah, my name is Dana. You from where? I'm from Kazakhstan. So how you feel today? I feel myself very good. I'm exciting. I got this certificate. I'm So amazing. today you want to give any message for all the world? World peace. For peace? Yeah. You think are you safe in the world? Yeah. I'm telling that all of us should believe in peace, in friendship, and you should be united because very important friendship. So I'm here in India almost 2 years, and I'm very happy. I met a lot of friends from different nationalities, and I'm grateful for my university and also all Telangana state. Thank you. ये हर साल प्रोग्राम होता तेलंगाना सिटीजन काउंसिल की तरफ से। जी।
10 साल पहले मैं तेलंगाना सिटीज़न काउंसिल के साथ जुड़ा, जब सिर्फ इंडियंस को अवार्ड देते थे। मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और वहाँ पर लगभग 4000 बच्चे बाहर के पढ़ते हैं और वो लोग अपने अपने अलग कंट्री से आते और अपने वक्त देते हुए यहाँ पर घर बार छोड़ के आके यहाँ पे जब रहते तो यहाँ के दुश्वारियाँ रहते उन सबको फेस करते हुए कई ये जो अवार्ड्स मिले हैं, ऐसे अब तक हम 4 या 5 बार दे चुके हैं पिछले 10 साल में। तो इन सब जिस किसी को हम अवार्ड देते हैं तो उनके लिए हमारा क्राइटेरिया यही रहता है कि वो लोग खाली एक आम स्टूडेंट नहीं बल्कि आने के बाद में वो लोग क्या करें, तो वो लोग अपने कंट्री के जो दूसरे स्टूडेंट्स आते हैं उनके लड़के लड़कियाँ उनकी कैसी मदद करते हैं, ये यहाँ पर के लोकल कल्चर को कैसे अडॉप्ट करते, लोगों के साथ कैसे मिल जाते, अपनी पढ़ाई को रखते हुए और दूसरे एक्टिविटीज़ में कितना टाइम देते, ये सब क्राइटेरिया रखते हुए हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो इस बार और एक इसकी इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी दिए हम लोग एक कंट्री से एक ही लड़की को दिए, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को हम लोग अकोमोडेट कर सकें, तो वैसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। अब जैसे इस बार जो दिए उसमें हर कोई एक अपने आप में एक काबिलियत और एक अपने आप में एक उभूर रखने वाले हैं। जैसे वो जो इराक की जो लड़की थी, मैं रिक्वेस्ट हुदा ये इराक की है, शी हैज़ डन कंप्यूटर साइंस से ये एमटेक करी हैं। उसके अलावा ये जो है अपने जितने इराकी से यहाँ जो पढ़ते हैं उनके लिए उनको कभी कोई अगर कॉलेज में डिफ़िकल्टी आ रही दी हैं। ऑल राइट। अब फिर उसके बाद है इथोपिया से है येनिनिश, वो यहाँ पर ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, फिर यहाँ पर मास्टर्स पढ़ी, फिर एरिथिया गई वो, फिर दूसरे कंट्रीज जाने के बाद वापस डॉक्टरेट करने के लिए पॉलिटिकल साइंस से उस्मानिया में आ गई है। सो शी इज़ डूइंग PhD कर रही है। बाकी जो दूसरे 4 लड़कियाँ हैं उज़्बेकिस्तान से, तजिकिस्तान से, किर्गिस्तान से, कज़ाकिस्तान से, सेंट्रल एशिया के हैं। ये लोगों के पास इतनी डिफ़िकल्टी है, तो पैसा उनकी गवर्नमेंट से बराबर टाइम पे नहीं आता, तो एक दूसरों की मदद करके ये लोग साथ रुके हैं और यहाँ पे जो सोशल सर्विस कर रहे हैं उनको नज़र में रखते हुए इन लोग को अवार्ड दिया गया, हर एक कंट्री से एक लड़की को। आज वुमेंस डे है, आज इस वक्त आपको क्या लगता है और क्या हम वुमेंस सेफ है और क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, अगर हम लोग वाकई अगर इसको अगर गंभीरता से या अगर अच्छी तरह से सोचें तो अल्लाह पाक जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजाए थे तो आदम अलैहिस्सलाम बिल्कुल अकेले हो गए थे, तो उनके लिए एक खूबसूरत तोहफे की शक्ल में औरत को भेजाए थे। तो उस चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज कर दिए, चाहे वो कोई भी समाज ले लें हम, चाहे मुसलमान समाज ले, हिंदू समाज ले या कोई भी समाज ले, आदमी इतना ज़्यादा तकब्बुर में आ गया, अकड़ में आ गया कि जो है उसको जो औरत को एक तोहफ़ा था, तो हम तोहफे को तो हम इतिहास से समझ के सुलझा के रखते हैं, मगर आजकल जो है उसको पाँव की जूती समझ रहे हैं। तो उसका नज़रिया, आदमियों को नज़रिया बदलना है। और ये जो वुमेंस डे हो रहा है, इंटरनेशनल वुमेंस डे, इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि कम से कम इसके ज़रिए से लोगों की ये समझ में आ जाए कि भाई औरत की कितनी अहमियत है। क्योंकि माँ भाई माँ बहन हो, खाला हो, जितने भी रिश्ते हो, अगर जो है औरत नहीं है तो फिर आगे समाज बढ़ता नहीं। तो उसके लिए जो है औरत की अहमियत बहुत है और इस्लाम में भी इतनी अहमियत बताई गई औरत के लिए, मगर हम लोग नज़रअंदाज करें। तो उसके लिए इस तरीके के प्रोग्राम मुनक़िद होना बहुत अच्छा है और ऐसे अवार्ड लेके जो बच्चियों को आगे बढ़ाएंगे तो उससे वो लोगों को भी एक हिम्मत मिलेगी और आदमियों के भी समझ में आएगा कि भाई ये हमारा एक हिस्सा है और जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको उतनी इज़्ज़त है जिसकी उनकी मुस्तहक़ है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आफिया अंजुम है। मैं MSc जियो इन्फॉर्मेटिक्स पढ़ रही हूँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी से। लास्ट ईयर ये अवार्ड मेरे को भी मिला था। मैं एक सोशल वर्कर की तरह वर्क करती हूँ, ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स को SSC के लिए प्रिपेयर करवाती हूँ। 2 इयर्स हो रहा है ये कमेटी ज्वाइन करके, अभी ये कमेटी के मेंबर है, इसका काम वगैरह भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा दिख रहा अभी ये काम करके, कम एज में एक समझ में आ रहा है कि कैसा लेके चलना है। वुमेंस डे इंटरनेशनली 8 को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन अब ये वीकेंड रहने की वजह से आज सेलिब्रेट किए। यहाँ पे देखिए, अपने मोस्टली कौन से भी अपने रिलीजियन में रहने दीजिए, किस में भी रहने दीजिए, एक औरत का एक अपना मुकाम है। ऐसा नहीं है कि वुमेंस मतलब कि उन लोग एक जगह पे रह जाना, एक चीज़ के लिए महदूद हो जाना। उन लोग को भी है कि एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंस देना है उनके, और उन लोग के अपना करियर के लिए भी इम्पोर्टेंस देना है, साथ साथ ही उन लोग का एक इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करना है घर में भी। और ये प्रोग्राम जो हम लोग ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, या फिर इसके एज ए स्टूडेंट हूँ लेकिन फिर भी मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग अलग अलग कंट्रीज़ के लड़कियों से मिलते हैं, या फिर जो भी सोशली वर्क कर रही लड़कियों को, मतलब एक नारी शक्ति टाइप में उन लोग को जो भी इनकरेज कर रहे हैं, उन लोग को हम लोग ढूंढते निकालते और एक इनकरेजमेंट के तौर पे उन लोग को अवार्ड देते। और मैं ख़ासतन अपने मुसलमानों से ये गुजारिश करूँगी कि आपके जो भी लड़कियाँ वगैरह हैं जो भी पढ़ने के लिए शौकीन हैं, या फिर जो भी पढ़ रहे हैं, आपके जो भी वालिद है, वालदा है, बहन भाई जो भी है, इनकरेज करिए, उनको पढ़ने दीजिए, सेफली उनको आगे बढ़ाइए। जज़ाकल्लाह।
शुक्रिया। तो ये थे आज के प्रोग्राम की तफसीलात जो कि हम आपके सामने पेश कर रहे थे। तो जैसा कि आज इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो आज हम भी यही कहना चाहते हैं कि हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, चाहे वो कौन से भी देश की हो। और मैं एक बात यही कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की नारी सारी दुनिया पे भारी, यानी नारी चाहे कहीं की भी हो, हर किसी पे भारी हो सकती है और होती है और रहेगी। तो इसकी इज़्ज़त करना सीखें, उसका सम्मान करें, उसको समझें, चाहे वो आपके घर में रहो या फिर शादी करने के बाद वो उनके ससुराल चले जाएं, क्योंकि ये वहाँ पर जाने के बाद भी वो आपकी ही बेटी रहती है। ऐसा नहीं कि वह दे दिए तो बस हमारा किस्सा ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अब मुझे दीजिए इजाज़त, कैमरामैन फारूक के साथ और हमारे हमदर्द मेरे हमसफ़र हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपके अपने चैनल स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस और Z Now TV, यही सच है। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए।